Let us see the position of the earth on 21st June and 22nd December. Here 24th June is the longest day in the northern hemisphere and shortest night. And 22nd December, see this is your northern hemisphere. See this is North Pole and down here it will be South Pole. So this is your equator. Below the equator, South Pole, southern hemisphere. Above the equator, your northern hemisphere, and this is your North Pole. So here it is told that 21st June is the longest day in the northern hemisphere and shortest night, and 22nd December is the longest day in the southern hemisphere and the shortest night. Now see, what is this? What can you see? This plus sign. This plus sign is your North Pole. Okay. And what is this blue color circle? It is your Arctic Circle, and this is the top view. That means when you look at it, Earth from the top, means when you are out of the Earth and you are looking at our Earth, planet Earth from the top, how it looks. So it looks like this. This is your North Pole, and this is the Arctic Circle. Okay, why I am showing you this? Look here. Now this red line is actually the Arctic Circle, what just now I showed you. So this Arctic Circle and this pink line is the North Pole. So the region from the Arctic Circle, this line, okay, from there to the North Pole, okay, the sun is visible for 24 hours or longer. मतलब यहाँ पे जो सन है वो कितना घंटा दिखता है? 24 घंटा, या तो उसके ऊपर भी 24 घंटे के आगे भी जा सकता है. और वैसे ही है एंटार्क्टिका, ये दिख रहा है नीचे एंटार्क्टिका, दिस इज एंटार्क्टिका. ओके, सो फ्रॉम एंटार्क्टिका टू द साउथ पोल, here also the sun will be visible for more than 24 hours. Even for months it will be visible. Why? Because it is near to the poles. In the north the sun is visible in the sky. कब होता है नॉर्थ में? ये देखो, ये नॉर्थ पोल है, ये वाला, this is north. So in the north the sun is visible in the sky from 22nd March to 23rd September, that is for 6 months. And in the south, from this Antarctic circle to the south pole, it is visible from 23rd September to 21st March. At the equator, मतलब इधर center वाला, this center is your equator. The duration of the night and the daytime remains the same throughout the year. यहाँ पे कोई चेंज होगा नहीं, पूरे साल भर वैसे ही ड्यूरेशन रहेगा. The cycle of seasons, you know now, which are the two main seasons, winter and summer. Somewhere they consider 4 seasons: summer, then we have winter, we can say spring and autumn. There's a cycle. Okay, so the equatorial region कहाँ आ गया? इक्वेटर के पास, यहाँ यहीं पे इक्वेटर है, ये पीछे अपना मैप है, वर्ल्ड मैप, यहीं पे इक्वेटर है. तो इक्वेटोरियल रीजन जो है उसको कोई भी चेंजेस नहीं है वहाँ पे सीजन्स का. देर इज़ नो सीजन्स ओवर देयर. क्लाइमेट रिमेन्स द सेम, नो चेंज इन द क्लाइमेट. वहाँ पे क्लाइमेट में चेंज ही नहीं. इक्वेटोरियल रीजन में चेंजेस जहाँ पे स्लैंटिंग रेस पड़ता है ना सन का, वहीं पे चेंजेस होगा, इक्वेटोरियल रीजन में नहीं होगा. ना चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, एक क्राइटेरिया है, वन फैक्टर, चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, वेपर इन द एयर, द विंड एंड प्रेसिपिटेशन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सीजन्स. सो सीजन्स क्यों, क्या इन्फ्लुएंस होता है, सीजन्स क्यों बदलते हैं? तो एटमॉस्फेयर में चेंज होगा, कभी हॉट रहेगा, कभी ड्राई रहेगा, ओके, कभी ह्यूमिड रहेगा. तो वेपर इन द एयर मतलब जो पानी है, मॉइस्चर है एयर में, ड्रॉपलेट्स फॉर्म होता है, वो वेपर. या तो विंड एंड प्रेसिपिटेशन मतलब रेन गिरता है ना नीचे ज़मीन पे, तो वो प्रेसिपिटेशन. These influence the seasons. Now see this, what you can see, this is your North Pole which I have already explained, this is your South Pole. Now this is your axis of the earth. तो वो टिल्ट है, टेढ़ा है ना, कितना टेढ़ा है, तो कैसे करेंगे? अभी अगर आपने प्रोटेक्टर रखा है, ये इक्वेटर है, और 90 डिग्री डाला ऐसा, ओके, ऐसे 90 डिग्री अगर इसको स्ट्रेट डाला तो कितना टिल्ट है, देखो कितना डिग्री टिल्ट है, 23.5 डिग्री टिल्ट, inclined. So the earth's axis is inclined at 23.5 degree. If the earth axis would have not tilted,
अगर ये टिल्ट नहीं होता अर्थ एक्सिस को, ये टिल्ट नहीं होता, ये टेढ़ा नहीं होता, तो सीजन्स ही नहीं होता अर्थ पे. देयर वुड हैव नॉट बीन एनी कंडीशंस for the seasons throughout the year. The seasons would have not occurred. It is only because of the tilt of the axis that leads to the occurrence of season. Because ये अर्थ का एक्सिस tilted है, इसलिए अर्थ पे seasons है. Our adaptation to climatic condition is possible only up to certain limit. Due to extreme cold climatic conditions, when the food supply becomes scarce, a number of birds and animals migrate. इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे सराउंडिंग्स है वैसे वैसे हमको खुद को एडजस्ट करना है, अडेप्ट करना है. और जब अडेप्ट नहीं हो पाते तो एक तो मर जाते हैं, और अगर आप अडेप्ट नहीं हो पा रहे हो तो क्या करोगे? वहाँ से चले जाओगे ऐसे कंडीशन में जहाँ पे आप एडजस्ट करोगे ना. सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा? देर आर सम एनिमल्स एंड बर्ड्स, दे माइग्रेट. माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं. तो ऐसे बहुत सारे पशु और पक्षी हैं जो माइग्रेट होते हैं. जैसे आपने पढ़ा होगा 5th स्टैंडर्ड में फ्लैमिंगोज आते हैं ना इंडिया में, साइबेरिया से आते हैं. दे कम ऑल द वे फ्रॉम साइबेरिया टू इंडिया. सिमिलरली ये दो है, देखो आर्कटिक टर्न, ये वाला आर्कटिक टर्न. क्या होता है? ये आर्कटिक टर्न रहता कहाँ है? नॉर्थ पोल. तो जब ठंडी बढ़ती है, वंस द विंटर एट द नॉर्थ पोल बिकम्स वेरी सीवियर, दिस बर्ड ट्रैवल साउथवर्ड. सीधा नॉर्थ से कहाँ आएगा? ये बर्ड साउथ पे आएगा. Okay, you know na, North Pole and South Pole. So this bird Arctic tern comes all the way from the North Pole to the South Pole when the winter is severe. When it is summer in the northern hemisphere, then again it flies. फिर क्या होगा? जब वापस समर रहेगा वहाँ पे, तो ये फिर से वापस चला जाएगा नॉर्थ पोल पे. मतलब क्या है? ये आर्कटिक टर्न को 2 बार समर सीजन मिलता है. पहले जब ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो यहाँ पे कौन सा सीज़न है? विंटर सीजन. तो ये आर्कटिक टर्न क्या करेगा? समर के लिए इधर आएगा साउथ पोल में. ओके, जब इसका समर सीजन ख़त्म हो जाएगा तो क्या वापस वो समर सीजन के लिए इधर जाएगा ना. विंटर ख़त्म हो गया, वहाँ पे समर आ गया. सो ट्वाइस इन अ ईयर दिस बर्ड इज एक्सपीरियंसिंग समर सीजन. एंड हाउ मेनी किलोमीटर इट ट्रैवल्स? It travels about 70,000 kilometers. And this is might be the only species in the world that experiences summer twice in a year. Now, why it is coming? Why this Arctic tern is coming? क्यों आते हैं वो इतना लंबा दूर नॉर्थ से साउथ पोल पे? खोज के लिए, खाना खोजने के लिए, इन सर्च ऑफ फूड. सिमिलरली जैसे मैंने आपको फ्लैमिंगोज बताया, इट कम्स ऑल द वे फ्रॉम साइबेरिया. वैसे और एक पक्षी है साइबेरियन क्रेन. ड्यू टू सीवियर विंटर एंड लैक ऑफ फूड, वहाँ पे बहुत ठंडी रहेगी साइबेरिया में, तो दे क्रेन जो है, ये साइबेरियन क्रेन, इट कम्स ऑल द वे टू इंडिया. कहाँ आते हैं? इंडिया में. ट्रैवलिंग अराउंड 8 to 10,000 kilometers. वन समर स्टार्ट्स इन इंडिया, दे माइग्रेट बैक टू नॉर्थ. और जब गर्मी इंडिया में स्टार्ट हो जाएगी तो ये वापस कहाँ जाएंगे? साइबेरिया में. I hope you understood this lesson. This was the end part of the lesson. I have broken this lesson into different small parts to make you understand better. Thank you so much.